ہم لوگ مدتوں سے ایک ایسی تلاش میں تھے کہ جہاں کہیں ہم ایوان سر سید کی تعمیر کر سکیں، جہاں کہیں سر سید کی نشانی تعمیر ہو سکے. بڑی کوششیں کی گئی. ایک زمانے میں جس زمانے میں سیکرٹری تھے ڈاکٹر شفیق قضائی صاحب، تو انہوں نے گورنر کو یہاں دعوت دی تھی. کچھ مخالفت بھی ہوئی تھی کہ صاحب گورنر کو وہاں بلایا جا رہا ہے، معاملہ دوسرا تھا وہ سیاسی، لیکن اس کے باوجود گورنر صاحب تشریف لائے اور انہوں نے اتنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہاں ظاہر کیا جس میں حیرت ہو گئی لوگوں کو کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس زمانے کے چیف منسٹر کو اپنے لیول سے خط لکھا اور زمین پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ریمائنڈر بھی ان کو دیا، لیکن کہاں سے ایک کمی رہ گئی کہ ان کو زمین نہیں مل پڑی. یہ زمانہ وہ ہے کہ اپنے مکان کی تعمیر میں کوئی 6 فیٹ زمین نہیں چھوڑتا. اگر اس کا بس چلے تو وہ سڑک میں مکان تعمیر کر لے، سڑک آنے جانے کا راستہ بند کر دے. ایسا زمانہ ہے. اس زمانے میں اگر کوئی شخص، کوئی ایسی شخصیت 30,000 اسکوائر فٹ زمین صرف اس لیے دے دے کہ وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی شخصیت ہمارے اظہار میں کوئی موجود نہیں ہے. میں یہ تو ایک نیت جاری ہے، لیکن جب تک آپ ان کا تعاون نہیں ہوگا، دعائیں نہیں ہوگی، تو منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. یہ صرف شروعات ہے اور ان شاء اللہ آپ کے گاؤں سے اور آپ کے تعاون سے ہم لوگ وہ حاصل کر سکیں گے جس کی امید یہی ہے. اور آپ کی شروعات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پروگرام کو پورا کرے کسی حد تک پہنچا. اسٹارٹنگ دے رہے ہیں ان شاء اللہ اس چیز کو اور آگے بڑھائیں اور ان شاء اللہ ڈاکٹر شعیب فاروقی صاحب کا مشورہ یہ آیا ہے کہ سیڈیشن پڑھنا چاہیے، اس لیے میں چاہوں گا کہ فیض مجید صاحب یہ سیڈیشن پڑھیں. پہلے ہی کہہ دوں کہ کچھ غلطیاں ہوں، جلدی پڑھوں گا، معاف کریے گا. So, Mr. Kamal Mahmood was born in Aligarh in a very reputed family. He completed his MSc Geology, MPhil Hydrogeology and Diploma in German Language from the Aligarh Muslim University. As a student, he took keen interest in horse riding and various activities. He was section commander of Riding Club, proctorial monitor, editor of Geological Society and member of ABU Music Ensemble. He was part of the team of Tarana when the Tarana was first presented to the first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. And coming to his career, he started his career with teaching at ABU. From 1969 to 74, he was the lecturer in Geology Department. Then the next stint, he joined Central Groundwater Ministry of Irrigation and Water Resources as hydrogeologist in 1974. There he has had important projects and he has worked on a project for UNDP which was much appreciated, and he was promoted to higher post of Scientist C and D level through UPSC. Based on his credentials and his work, he was transferred to a new CGWB state unit in Allahabad, which was set up in 1997. He got retired in 1990 as director upon superannuation in 2004, but then his services were still required, so he was appointed as groundwater consultant in a project, groundwater industry in Uttarakhand by an Australian MNC, SMES International.
His report titled Hydrogeology of Uttarakhand was adjudged as a masterpiece by the country head. He has got many awards. The list is too long for me to read it here. So in the end, I'll just say that in 1987 he got a certificate of merit on his successful completion. पेश किया तो बस भाई की तजवीज़ मानी गई और मानी क्यों नहीं जाएगी, तो हुक्म था, तजवीज़ नहीं थी। बहुत अच्छा लगा। शख्सियत और है हमारे दरमियान सैयद सफदर इमाम आबिदी साहब, मोहतरम सैयद सफदर इमाम आबिदी, तालियों से उनका सेलेक्शन उनकी खिदमत में पेश करने के लिए डॉक्टर इरम दीवा। My pleasure to present brief about Mr. Syed Safdar Imam Abdi. Born in 1938 into a well-reputed family of Ghazipur, Mr. Syed Safdar Imam Abdi, the learned and thoughtful personality, was a remarkable alumni of Aligarh Muslim University. He was the son of late Syed Mujtaba Hussain Abdi, an illustrious alumni himself for example. Mr. Abdi got his early education in local Islamia school. In 1945, he joined Government High School, Ghazipur, and did his high school and intermediate in 1953, 1955 respectively. After completion of his intermediate, he joined Aligarh Muslim University in 1955 and did his BSc and MSc. From there, he was resident of Osmania Hostel of Sir Syed Hall. During his student days, he captained college and district team of cricket. The private cricket career got him selected at Public Service Commission. He joined as a senior research assistant in Shahjahanpur in 1961 till 1963. After that, he moved to join Education Department in Uttar Pradesh. He served in various departments as in chemistries of lecturers, deputy inspector of schools, vice president and principals of schools. Retired in 1996 as a principal of Husainabad Inter College. Before I ended my address, I, on behalf of Amga fraternity, pray Almighty Allah to bestow on him the best of blessings. मदारिस ने जो किरदार अदा किया है आज़ादी से लेकर अब तक के हिंदुस्तान में, उसको फरामोश नहीं किया जा सकता, कोई सूरत ऐसी नहीं है। लेकिन उन मदरसों से निकले हुए बच्चों का मुस्तक़बिल में सिर्फ मस्जिदें होती थी या मदरसे तक तालीम मौजूद होती, इसके अलावा कोई तसव्वुर नहीं था। इस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है कि देवबंद से नरमा से फारिग न जाने कितने लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ से PhD करके निकले, डॉक्टर होकर निकले। तो ये मदरसों का कोई महदूद मामला नहीं है। कर्नाटक ऐसा डॉक्टर साहब ने एक कारनामा अंजाम दिया है कर्नाटक मदरसों के बच्चों को लेकर इन्होंने उनको इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया और तरक्की की उस राह पर लगा दिया जो हमारे हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ और शकील साहब, मोहम्मद सैयद साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ हज़रात, बहनों, नौजवानों, महज अल्लाह का फज़ल है, एक बहुत ही मारूफ आलिम दीन के नाम से मुझ नाचीज़ को यहाँ पर उनकी याद में उनका पहला अवार्ड मुझे दिया गया है। ये महज अल्लाह का फज़ल है। आज सैयद डे है और एक आलिम दीन वो तालीम के उन्वान पर बड़ा काम किए। जब भी कुछ बोलते थे, जहाँ भी जाते थे तो तालीम 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 ही का जिक्र करते थे और उसी चीज़ को लेकर हम यहाँ फिक्रमंद हैं। मैं अपना छोटा सा शाहीन का सफ़र का जिक्र करूँगा और चंद गुजारिशात करते हुए अपनी जगह लूँगा। जैसा कि बताया गया 1989 को सिर्फ 17 स्टूडेंट्स के साथ एक कमरे में इन बिटवीन एकेडमिक ईयर, एग्जैक्टली इन बिटवीन एकेडमिक ईयर, ऐसा कमरा जिसकी प्लास्टर और फ्लोरिंग नहीं की थी, जो घर का एक कमरा जो 2 साल से जिसकी तामीर रुकी हुई थी। उस वक्त एहसास हुआ था कि एक स्कूल की ज़रूरत है। मेरे छोटे भाई काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी ड्रॉप आउट हो गए थे, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम इतना सब कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं
پھر بھی یہ بچہ ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے، کئی لوگ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کیا ہوگا؟ کیوں نہ سب کے لیے کچھ کیا جائے، سوچا جائے۔ اچانک یاد آیا اور ہم ایک اسکول شروع کیے، خاندان کے کچھ بچوں کو، دوست باقی کچھ بچوں کو لے کر الحمدللہ جیسا کہ آپ ابھی سنیں 20,000 اسٹوڈنٹ کی خدمت کرنے کا اس وقت ہم کے اغراض مقاصد لکھے تھے، اس میں پہلا جملہ تھا الحمدللہ اللہ کا فضل کہ مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا ہے۔ چھوٹا سا LKG شروع کر رہے ہیں اردو میڈیم، اور اغراض مقاصد میں پہلی لائن تھی مسلمانوں میں تعلیمی شعور بیدار کرنا۔ اللہ کا فضل ہو رہا کہ آج بیدر اس کے اطراف میں اس کے اثرات محسوس کر رہے ہیں۔ علی گڑھ جو ہمارے سامنے مثال ہے، ایک ادارہ ایک علاقے کی فضا کو بدل سکتا ہے، اور علی گڑھ اس کی مثال ہے۔ علی گڑھ نہ ہوتا تو یہ ملکوں کو سنبھالنے والے نہ ہوتے، ملکوں کو سنبھالنے والے نہ ہوتے۔ آج ہماری چھوٹی سی حقیر سی کوششوں کے نتیجے میں شاہین بیدر سے انڈیا بھر کے 0.8 میڈیکل سیٹ 0.8% میڈیکل سیٹ پورے انڈیا کے شاہین بیدر سینٹر سے جا رہے ہیں۔ 14% گورنمنٹ کی میڈیکل سیٹ شاہین بیدر کے کیمپس سے جا رہے ہیں۔ ایک ماحول بنا ہے، غریب امیر ہندو مسلم اس طرح سے رہتے ہیں، اس طرح سے رہتے ہیں، اور ہمارے زیادہ شاہین اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھیجنے کے لیے آرزویں کرتے ہیں، بڑے شوق سے لے کے آتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میری بیٹی میرے گھر سے زیادہ محفوظ آپ کے پاس ہے۔ ہندوستان بھر سے لڑکیاں آ رہے ہیں، 5,000 حافظ ہیں، ان کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ابھی تک 2,900 اسٹوڈنٹ کو ہم گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں بھیجنے میں کامیاب ہوئے۔ ہمارے پہلے یہ ٹارگیٹ تھا کہ ایک اسکول کا اضافہ نہیں بلکہ ایک مختلف اسکول ہمارا ہونا چاہیے، اور طلبا کی تمام تر تعلیم کی ضرورت ہم پوری کریں گے۔ اس احساس کے ساتھ کام شروع کیے تھے۔ یقیناً دینی تعلیم میں اہم ترین ضرورت ہے تو ہم کلاس روم میں شروع کر دیے۔ پھر احساس ہوا ناظرہ قرآن ایک اہم تعلیمی ضرورت ہے کہ LKG UKG فرسٹ میں قاعدہ پڑھانا شروع کرے۔ سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں مکمل 30 پارے ناظرہ پڑھانے کا سسٹم رائج کر لیے، اور تھرڈ سیکنڈ پاس بچوں کے لیے ایک شعبے شروع کر دیے تھے، اور وہاں پر ہم لکھا رکھے تھے 80-20 کا معاملہ تھا۔ 80% وقت ہم حفظ پہ دیتے، ہمارے شعبے میں 80% وقت حفظ پہ دیتے تھے، اور 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویج پہ لگاتے تھے۔ یہ بچے 3rd 4th 5th میں کچھ مکمل کرتے تھے 5-10 دور کے ساتھ، اور وہ پھر بعد میں کلاس میں آتے تھے۔ 15-20 دن کے اندر اندر وہ اپنے ساتھیوں سے بہتر پڑھانا جانا شروع کر دیتے تھے، اور یہ آگے بڑھے 9th 10th 11th 12th کے پہلے ہی بیچ میں ہماری یہ حافظہ پایا رابعہ بسری کرناٹکا کے سب سے ٹاپ میڈیکل کالج بنگلور میڈیکل کالج میں گورنمنٹ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور یہ آگے گیا دوسری ہمارے اپنے چھوٹے کے بچے سکسیسفل ہو رہے تھے۔ جیسا کہ میں بتایا کہ تمام تر تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے، احساس کے ساتھ کام شروع کرے تھے، تو ہم کو ایک احساس ہوا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیوشن بھی جاتے تھے، ہم کو برا لگ رہا تھا، یہ تو ہماری انسلٹ ہے، ہمارے اسکول کی اور ہمارے ٹیچر کی انسلٹ ہے۔ تو ہم ایک دن طے کرے اور اعلان کر دیے کہ شاہین کا کوئی اسٹوڈنٹ ٹیوشن نہیں جائے گا، اور ٹیوشن کو بین کیا جائے گا، شاہین ٹیوشن نہیں ہوگا، ایسا ہوگا۔ اس کی مخالفت میں ہی روزگار محنت کے اندر اندر لوگوں کو احساس ہوا کہ ہاں یہ صحیح طریقہ ہے، اس سے فائدہ ہونے لگا، تو الحمدللہ کوشش کریں۔ لیکن کچھ دنوں کے اندر اندر ہم کو یہی اندازہ ہوا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر ہم پلان کریں، فکر کریں، میٹنگز کریں، ہمارے ریسرچ ہوا، تھوڑا محنت ہوئی، اور 6-7 مہینے کے اندر اندر ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ قائم کر لیے، ایک شعبہ بنا لیے، اور وہ ڈپارٹمنٹ کا نام رکھے ہم AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ۔ ہم AICU شروع کرے، وہاں پر ایک ٹیچر کے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے۔ ICU میں ہر چیز کا علاج تھوڑی ہوتا، کریٹیکل چیزوں کا علاج ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز پڑھانے کا سلسلہ کرے، اس کے لیے بکس بنا لیے، اور ٹیچرس کی ٹریننگ ہوئی۔ جنرل وارڈ سے کمزور لوگوں کو ICU میں لایا جاتا ہے، ریگولر کلاسز میں سے بچے جو کمزور چل رہے تھے میتھمیٹکس اور لینگویج میں ان کو لا کر AICU میں ان کی میتھمیٹکس اور لینگویج کو ٹھیک کر کے کسی کو 10 دن 15 دن 20 دن کے اندر پھر واپس ریگولر کلاس میں بھیجنے کا سلسلہ چلا۔ ماشاءاللہ لوگ مطمئن ہو گئے، اور بیدر ڈسٹرکٹ ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ بن گیا ہے، انڈیا کا واحد ڈسٹرکٹ ہے
संदेश है, तो कमजोरी को इरेडिकेट करने की हमारी ख्वाहिश है, ये गैर जरूरी है। अब हाफिज बच्चों की मैं मिसाल देता हूँ, एक बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है और सबक ले रहा है, एक उस्ताद के पास सबक ले रहा है, फिर जाके दूसरे उस्ताद के पास सबक ले रहा है, फिर तीसरे उस्ताद के पास सबक ले रहा है, क्या वही मुकम्मल करेगा? उसके लिए दौड़ करना पड़ेगा, सबक पढ़ना है, सबक का पारा पढ़ना है, आमुख्ता की तैयारी करना है, तभी जाके वो हाफिज बनता है। इसी तरह से ट्यूशन नुकसान जो है हमको एहसास हुआ था, अल्लाह का फजल हुआ। एक तरफ ये जो है कामयाबी भी, इस दौरान हमारे पास कुछ ड्रॉपआउट बच्चे आ गए, मामू चाचा लेके आ गए। बच्चा वर्कशॉप में काम कर रहा था, 10th में 2 साल से फेल हो रहा था, क्योंकि हमारे पास AICU था, हम उनको लिए AICU में रखे, उनकी मजमू इस्लामी में किए, फिर वापस रेगुलर क्लास में 10th में बिठाए, वो बच्चे 10th 11th करे। माशाल्लाह यहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, तो मैं 2 नाम लूँगा इसी AICU से ड्रॉपआउट जो आगे बढ़े हैं। ख्वाजा पटेल वर्कशॉप में काम करते थे, डीजल मैकेनिक बन रहे थे, वो 5 साल तक 4 साल तक डीजल मैकेनिक का काम कर रहे थे, हमारे पास है। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके शाहीन के बनावटी डायरेक्टर हैं। यहाँ पर लोग जानते होंगे अंदर पर वो 12th आर्ट्स गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से फेल हुए थे, वापस उनको हम 11th साइंस में लिए और उनका बेसिक ठीक करके उनको आज आगे बढ़ाए। वो MSc करके आज शाहीन के प्रिंसिपल हैं और 7,000 स्टूडेंट को संभालते हैं। उनके छोटे भाई आज हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो 12th आर्ट्स गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से फेल थे। माशाल्लाह एक तरफ की हमारे ड्रॉपआउट सक्सेसफुल हो रहे थे, दूसरी तरफ हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ के बच्चे सक्सेसफुल हो रहे थे। तो 12 साल पहले मुझे ख्याल आया क्यों ना ये तरीक़ेकार अगर हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ के लिए अपना जाए तो ये ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि हाफिज़ हैं जो यकीनन रहीम हैं, हाफिज़ हैं जो यकीनन मेहनती हैं, ये तराशे में हीरे होते हैं। इनके ताल्लुक से बोला जाता है कि साथ में टेलरिंग सिखा दो ताकि कमरे में जो है मस्जिद के कमरे में जो है रोटी का जो है इंतजाम होगा। इस सरासर गलत नहीं, ये तो जुल्म ज़्यादती है इनके साथ। मुझे एहसास हुआ हाफिज़ हैं जो IAS बनाना चाहिए, IPS बनाना चाहिए, डॉक्टर बनाना चाहिए, डायरेक्टर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर किसी फर्म के ऑफिस के इंडस्ट्री के बन जाएंगे। इस एहसास के साथ एक मीटिंग लिए बोली और प्रोग्राम बनाए, एक 4 साल का प्रोग्राम बनाए और प्रोग्राम का नाम रखे हिफ्ज़ुल कुरान प्लस नाम रखे और ऐलान करे। हरियाणा से, हैदराबाद से, बेंगलोर से कुछ बच्चे आ गए। माशाल्लाह हम 4 साल का प्रोग्राम बनाए थे, हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। ये बच्चे 3 साल के अंदर वो प्रोग्राम मुकम्मल करे, वो 10th 11th 12th पास करे और उस बैच का पहला हाफिज़ बच्चा हाफिज़ अबू सुफियान जो बेंगलोर से आया था, जो ज़िंदगी में कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखा था, स्कूल में कदम नहीं रखा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया और आज उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहा है। वो PG की तैयारी कर रहा है। वो अपने छोटे भाई को भेजा, वो भी जो है इस साल मेडिकल सीट ले रहा है। उसका छोटा भाई ड्रॉप करा है, 380 मार्क्स लेके, उसका छोटा भाई 12th में है, उसका छोटा भाई 10th में है, उसका छोटा भाई 9th में है। 6 हाफिज़ हैं और 6 इसमें शाहीन से गुजर रहे हैं। आप दुआ कीजिए ये 6 डॉक्टर होंगे, ये 6 हाफिज़ हैं, एक ईमान के बच्चे हैं, ऐसे बेशुमार मिसालें हैं। अब हिफ्ज़ुल कुरान के तकरीबन 30 सेंटर इंडिया में काम कर रहे हैं। आप दुआ कीजिए एक हाफिज़ भी छूटने ना पाए, एक हाफिज़ भी छूटने ना पाए। इसके साथ साथ हम ड्रॉपआउट के लिए कोशिशें कर रहे हैं, ड्रॉपआउट को लेकर AICU के ज़रिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद एक स्कीम हम बनाए थे, वो स्कीम का नाम रखे थे हम कम्युनिटी एड एंड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट। उसके तहत एक मस्जिद के इलाके के लोग मिलकर किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करें, उसके लिए चंदा जमा करें, 30% चंदा जमा करें, 70% कंट्रीब्यूशन हम करके उसको बच्चे को तालीम करेंगे, आप बनेंगे और उसके लिए हम मौका लिए। लॉकडाउन के बाद इसका ऐलान तो हम पूरे इंडिया के लिए करे थे, हकीकी मानों में आप लोग माशाल्लाह पूरे स्टैब्लिश हैं, आप जो है काफ़ी तरक्की हुई है, आपको अलीगढ़ से फारिग हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये फॉर्मूला अख्तियार कीजिए। कम्युनिटी का जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं होता कौम का मसला हल नहीं होता। अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई पड़ोस के बच्चे को, रिश्तेदार के बच्चे को, एक यतीम बच्चे को जो है आप अपना कंट्रीब्यूशन के जरिए आगे बढ़ाइए। इंस्टीट्यूशन को आप बच्चे को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रीब्यूट करके किसी स्कूल को लेके जाकर पूछिए, वो मैं यकीन से बोल सकता हूँ वो 40%, 50%, 70% स्कॉलरशिप देगा उन बच्चों को।
آگے بڑھیں گے۔ تعلیم تعلیم تعلیم، کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے آ سکتی ہے، اور وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتی ہیں، اور وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی تہذیب کی حفاظت کرتی ہیں۔ تہذیب کی حفاظت میں توجہ دیجیے۔ آج نانا دادا نصیحت کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، ماموں چاچا نصیحت نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہر ایک کو فکر کرنا ہے۔ نئی نسل کو عجیب و غریب فیشن کی، عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں، عجیب بال ہیں، کپڑا پھاڑ کر پہننا جو ہے وہ بڑا فن ہو گیا ہے۔ اس طرف توجہ دیجیے، یہ برائیاں ختم کیجیے، تہذیب کی حفاظت کیجیے، اور یقیناً عزت و افتخار کا واحد راستہ، عزت و افتخار کا واحد راستہ بہترین تعلیم اور اعلیٰ تربیت ہے، اعلیٰ تربیت ہے۔ شکریہ کو ختم کریں، فنکشن کو، تقاریب کو ختم کریں۔ وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اپنی تعلیم کا خرچہ دے۔ آپ کو میری گزارش ہے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ہم کو اتنا تو کرنا چاہیے۔ بہترین لکھا وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، بہترین کا کووڈ آپ جانتے ہیں بہترین ہے، کم خرچ کا کووڈ زیادہ خرچ ہے، بہترین لکھا وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہے۔ میں یہ جرت کروں گا بولنے کی، ناراض مت ہو جائیے، ایسے نکاح میں جانا، مسکرانا، کھانا، مبارکباد دینا گناہ، اس کے توجہ دیجیے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، تبصرے کرنے بیٹھے تو بڑے بڑے تبصرے ہوتے ہیں اور باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے تقاریب میں جانے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کتنے ہیں ہم لوگوں میں جو یہ ضرورت کر سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ہم کو ضرورت کرنا ہے، ہم کو پہل کرنا ہے، اور یہ فضول تقاریب کو ختم کرنا ہے، اپنی ساری طاقت نسل کی تعلیم اور تربیت میں اور اس کے کاروبار میں لگانا ہے۔ یہ چند گزارشات میرے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ لوگ مجھ سے یقیناً زیادہ جاننے والے ہیں۔ چھوٹی سی کوششوں کے نتیجے میں یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ادھر جو ایجوکیشنلی بیکورڈ مائنورٹی کانسنٹریٹ ڈسٹرکٹ ہے، نیگلیکٹڈ ڈسٹرکٹ ہے، چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پر ایک حقیر فقیر، ایک جیسا کم معلومات والا، کمزوریوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ادارہ شروع کیا۔ اب میری خواہش ہے ہمارے ملک کو شاہین جیسے 500 اداروں آپ حاصل کی ہندو آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ سب محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاسٹل میں رہنے سے آپ دنیا سے واقف ہوئے، دنیا کو جانے، آپ کی دنیا بدلی، آپ کا لائف اسٹائل بدلا، اور آج اس مقام پہ ہیں۔ تو اچھے ماحول کے ہاسٹل سے ماں باپ کے دل سے پوچھیے ان کے کیا گزر ہے، سب ٹھیک ہے، باس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، خاندان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اولاد قابو میں نہیں ہے۔ ایسے حالات میں بہترین ہاسٹل 9 to 12 بہترین ہاسٹل شروع ہوں، مدرسوں میں جو ہے کام ہو، دینی اچھی تعلیم کا انتظار ہو، مساجد ہمارے جو ہے یقیناً عبادت کے مراکز ہیں، ہمارے مساجد دعوت کے مراکز بھی ہونا چاہیے، چیریٹی کے کار خیر کی امداد کرنے کی مراکز ہونا چاہیے، ہمارے مساجد اور تعلیم کے مراکز ہونا چاہیے۔ 2-4 مساجد میں کام ہو رہا، مصطفیٰ صاحب جانتے ہیں، فضان مصطفیٰ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں حیدرآباد میں ایک تو مسجد حسن میں یہ کام شروع ہوا، حفاظ کو جوڑ کر پہلے ہی بیچ میں وہاں پر 25 حفاظ وہاں کی تاریخ میں جو ہے ایک سال 25 کے 25 ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوئے ہیں، اور اب وہ میڈیکل کی تیاری میں جو ہے لگبھگ کر رہے ہیں۔ یہ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھیں گے، یہ حفاظ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کے رکھیں گے، ہماری نسل دینے والی، کنٹریبیوٹ کرنے والی بن جائے تو یہ دنیا ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اور میں ایک اور ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہم میں سے ہر ایک 5 برادران وطن کو سے دوستی کریں، تعلقات بڑھائیں، ان کے غلط فہمیوں کو دور کریں، ان کا حقیقی معنوں میں خیر خواہ بن جائیں، ہم حقیقی معنوں میں خیر خواہ بن جائیں، چاہے وقت لگ جائے اور کچھ جلد دوری کر لیں۔ تو دیکھیے یہ ہمارا ملک کو آج ضرورت ہے، ہمارے ملک کو یونیورسٹیز کی ضرورت ہے، اور فیکٹریز کی، انڈسٹریز کی ضرورت ہے، اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، لیکن آج ہمارے ملک کو پیار و محبت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو ہمارا ملک پھر سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے، اور ہمارا ملک پھر سے دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے۔ میں چند گزارشات کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے آج کی اسی بات کو دھیان سے سنیں، اور منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو 30,000 اسکوائر فٹ
लैंड जो दिए हैं, इनका मैं बेहद मशहूर हूँ। आप सबसे खिलाफ करता हूँ, आप अंदाजा नहीं लगाना, इतना जल्दी वो कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कीजिए। सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और अल्लाह करे कि आइंदा साल ये प्रोग्राम वहाँ पे हो जाए, मेरी ख्वाहिश है, और मैं फिर से दौड़ कर आने की ख्वाहिश रखता हूँ। बहुत पहले ये कहा गया था सैयद रमज़ान के लिए कि हमारी बातें की बातें में सैयद काम करता था। तो सैयद ने सिर्फ जो काम किया है, उनके नक्श कदम पर चलकर आप जैसी अजीम शख्सियतें अभी हिंदुस्तान में गए, जो पूरी कौम का मुस्तक़बिल सोच रही हैं, हिंदू और मुसलमानों से बुलंद तर होकर कौम का मुस्तक़बिल सोच रही हैं। बड़ी बात है। तो कदीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लाए और हमें सबको अपने आप को देखने का मौका दिया। कन्नड़ बोलने वाले लोग नहीं हैं, कर्नाटक के हैं, लेकिन किस कदर शुद्धा उर्दू बोल रहे थे, ये और हैरत की बात है। तो इसकी वजह ये है कि कर्नाटक में उर्दू मीडियम के स्कूलों की तादाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बताया भी। तो ये सब कमाल के लोग हैं साहब, इनको जितना भी इनकी अक़ीदतों को सलाम पेश किया जाए, इनकी खिदमत को कम। एक शख्सियत है जिसका तारुफ करवाने के लिए मुझे अब मैं क्या अर्ज़ करूँ था, तारुफ जो उनका होता है, जिनका कोई तारुफ न हो, जो शख्स अपने आप में ही अपना तारुफ है मुकम्मल, इनका नाम दे दिया जाए तो वो तारुफ हो जाए मुकम्मल तौर पर, वो उनके बारे में क्या बोला जाए। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि हिना जाफरी साहबा तशरीफ लाएँ और ऐसी अजीम शख्सियत का तारुफ कराने की सादत हासिल करें जिसे प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा कहा जाता है। Assalamualaikum. It is indeed an honor and a privilege to introduce an eminent legal scholar, a stalwart, distinguished academician, and an AMU alumnus, Dr. Faizan Mustafa Sahab. It is a challenge to speak about him in a few lines. No matter how much I speak about him, it will be like showing a candle to the sun. Though he needs no introduction, I shall do so in keeping with the tradition. अहले चमन को अपनी बहारों पे नाज था, अहले चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। Ex-Vice Chancellor of Nalsa University, Hyderabad, and the founding Vice Chancellor of the National Law University, to introduce an eminent legal scholar, a stalwart, distinguished academician, and an AMU alumnus, Dr. Faizan Mustafa Sahab. It is a challenge to speak about him in a few lines. No matter how much I speak about him, it will be like showing a candle to the sun. Though he needs no introduction, I shall do so in keeping with the tradition. अहले चमन को अपनी बहारों पे नाज था, अहले चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। Vice Chancellor of Nalsa University, Hyderabad, and the founding Vice Chancellor of National Law University, Odisha, Faizan Sahab is an expert on constitution. However, his expertise lies in other subjects as well. He has his doctorate in copyright law and a diploma from International Institute of Human Rights on International and Comparative Human Rights Law. He has done his bachelor's in history honors, followed by LLB and LLM. He is an elite we all are so proud of. He was unanimously elected as Vice President, President-elect of the prestigious Shastri Indo-Canadian Institute, which is a bi-national organization of Canadian and Indian governments. He was awarded LSE Gold Medal of International Institute of Human Rights, France in 1990.
इतना जानते हैं कि कोई दूसरा आदमी जानता ही नहीं। तो कानून इसका ये है कि अगर माइक पर बुलाया ना जाए तो आप नहीं आ सकते। तो मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर फैज़ फारूकी साहब पर मेरा फैज़ान साहब की खिदमत में पेश कर दें, उसके बाद मैं फिर उनको आवाज़ देता हूँ। बिना जाफरी साहब ने तो अंग्रेजी को ताल्लुक कराया है फैज़ान साहब का, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैं उर्दू में अपने टूटे फूटे अल्फाज भी इस्तेमाल करके उनको आवाज़ दूँगा माइक पर। डॉक्टर भाई साहब ये बात पेश कर दिया गया। अब फैज़ान साहब यहाँ आएंगे। कुछ नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ एक शेर कहूँगा और उससे मेरा काम हो जाएगा आसानी से कि 100 चांद भी चमके तो कहाँ बात बनेगी, 100 चांद भी चमके तो कहाँ बात बनेगी, तुम आओ तो इस पर की औकात बनेगी। के बारे में मुझे लफ्ज़ लेना लायक बने याद शेख भाई गुफरान साहब, डॉक्टर अब्दुल करीम जो बिल्कुल रियल सर सैयद के फॉलोअर हैं, मुनव्वर मेरे बहनोई और बड़े बहन की तरह मेरे रियाज निधि साहब ने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं। उसके बाद क्या सर सैयद के बारे में कहूँ, और कुछ इंटरनेट और व्हाट्सएप के ज़माने में एक हफ्ते से जगह जगह से चीज़ें आ रही हैं, तो कुछ इतना खास बचा नहीं जो मैं बात करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अजीब लगी। जैसे अलीगढ़ के और जगह के सर सैयद डिनर्स को कहा गया कि साहब वो मीट स्पेस है और कोरमा और बिरयानी जो है उसको खाने में अलीगढ़ और ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं समझता हूँ ये बात गलत है। अगर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है उससे आपने रोज़ा भी नहीं रखा, रोज़ा भी अरे भाई आज का फंक्शन डिनर का है, कभी सेमिनार भी होगा, ये भी लिखा के साथ सेमिनार भी करते, ठीक है, सेमिनार की अलग गुंजाइश होती है। कुछ ने ये लिखा कि साहब वो दरअसल बिहार में बड़ी अच्छी तालीम थी, और ये जो बात कही जा रही है कि साहब वो सर सैयद ना होते तो हम कहाँ होते, ये बेसिकली यूपी के अशराफ के लिए है। मैं समझता हूँ कि ये एग्जैक्टली है और ये बात मुनासिब नहीं है। चंद चीज़ें जो यहाँ कही गई मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर मुबश्शिर को और डॉक्टर उस्मा को, और आप देखिए कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो जाहिर है कि बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जब अक़लियती किरदार का केस चल रहा था, उसमें एक जगह पर जाहिर है कि पटिशनर्स तो अलीगढ़ के अपने स्टूडेंट्स थे जो गए थे मेडिकल कॉलेज के, उसमें ये कहा गया कि दरअसल इनका कंट्रीब्यूशन कुछ बहुत कम था। तो फिर मैं सर सैयद हाउस गया, क्योंकि मैं उस जमाने में रजिस्ट्रार हो गया था, क्योंकि केस पहले से चल रहा था मेरे रजिस्ट्रार बनने से। आप यकीन मानिए कि ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो डॉक्टर साहब ने किया। एक एक पाई की हजारों रिसीट्स मैंने रखा और वो प्लास्टिक की थैलियां में रखी। कितना बुरा हम अपना रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं कि उनमें इतनी डस्ट और उनको प्लास्टिक की थैलियों में हमने रखा हुआ था। एक मजिस्ट्रेट थे जाफर साहब, उन्होंने एक मुहिम चलाई 1 रुपी फंड। दरअसल आपको मालूम है कि एमएओ कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने का जो मरहला था बड़ा मुश्किल था। 30 लाख रुपए सरकार ने मांगे। बड़ी अच्छी तालीम थी, और ये जो बात कही जा रही है कि साहब वो सर सैयद ना होते तो हम कहाँ होते, ये बेसिकली यूपी के अशराफ के लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी एग्जैक्टली है और ये बात मुनासिब नहीं है। चंद चीज़ें जो यहाँ कही गई मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर मुबश्शिर को और डॉक्टर उस्मा को, और आप देखिए कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो जाहिर है कि बहुत सालों तक याद रखा जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जब
जब अक़लियती किरदार का केस चल रहा था, उसमें एक जगह पर ज़ाहिर है कि पेटिशनर्स तो अलीगढ़ के अपने स्टूडेंट्स थे जो गए थे मेडिकल कॉलेज के, उसमें ये कहा गया कि दरअसल इनका कंट्रीब्यूशन कुछ बहुत कम था। तो फिर मैं सर सैयद हाउस गया, तो फिर मैं उस जमाने में रजिस्ट्रार हो गया था, क्योंकि केस पहले से चल रहा था मेरे रजिस्ट्रार बनने से। आप यकीन मानिए कि ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो डॉक्टर साहब ने किया। एक एक पाई की हजारों रिसीट्स मैंने अपने हाथ, और वो प्लास्टिक की थैलियां में रखी। इतना बुरा हम अपना रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं कि उनमें इतनी डस्ट, और उनको प्लास्टिक की थैलियों में हमने रखा हुआ था। एक मजिस्ट्रेट थे जाफर साहब, उन्होंने एक मुहिम चलाई, ₹1 फंड। दरअसल आपको मालूम है कि MAO कॉलेज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने का जो मरहला था बड़ा मुश्किल था। 30 लाख रुपए सरकार ने मांगे कि आप 30 लाख रुपए का रिजर्व फंड करें क्रिएट, तब आपको यूनिवर्सिटी बनाने की बात जो है वो हम सोचेंगे। मैंने उस जमाने में कैलकुलेट कराया 2006 में कि क्या इसकी वैल्यू रही होगी, 30 लाख, तो वो 284 करोड़ रुपए, और ये 284 करोड़ रुपए एक एक पाई से इकट्ठे हुए। ये आप देखिए कि कितना मुश्किल काम है। और अफसोस जब हुआ, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस A.N. रे ने ये कहा कि वो जो रिजर्व फंड था जो इन्होंने बनाया था, जिसमें बड़ा मुसलमानों का अहम रोल रहा होगा, ओवर द इयर्स हैज वाइप्ड आउट। सेक्शन 7 में लिखा है रिजर्व फंड आप खर्च नहीं कर सकते, सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट आएगा या जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो खर्च कर सकते हैं। वो रिजर्व फंड, वो 30 लाख रुपए आज भी मौजूद है वैसे ही, क्योंकि वो खर्च किए ही नहीं जा सकते। बहरहाल एक और चीज मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि आज तक मैंने बहुत जाहिर है फंक्शंस देखे जहां ऑनरेडी सेक्रेटरीज ने रिपोर्ट पढ़ी, पर शोएब भाई इससे अच्छी रिपोर्ट आज तक नहीं पढ़ी। अब शकील भाई ने अंग्रेजी में शुरू कर दिया मामला। मैं दरअसल आज सोच रहा था कि जैसे शकील भाई कहते हैं अक्सर कि भाई बड़ी संजीदा बात होती है लखनऊ के सर सैयद डे में, तो मैंने दरअसल सोचा ये था कि मैं आज आपसे ये बात करूं कि जो MAO कॉलेज की गवर्नेंस थी, जो जाहिर है कि सर सैयद ने ड्राफ्ट किए थे उसके रूल्स, और बड़े डिटेल्ड रूल्स थे, तकरीबन 200-250 रूल्स, कि उनके बारे में बात करता और आपको बताता कि देखिए कोई भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन क्या इससे बेटर गवर्नेंस के उसूल बना सकता था, और ये डेफिनेट रूल्स थे। लेकिन अब डिनर में डिले हो रहा है और उतनी बोरिंग चीज शायद आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं 3 जो हमारे जमाने के मसले हैं जिनसे आज हमारी कम्युनिटी जूझ रही है, उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, और उन पर सर सैयद का किस तरह का रिस्पॉन्स था उसके बारे में चंद बातें, और क्या वो रिस्पॉन्स आज रेलिवेंट है। हजरत से जाहिर है कि जो मोहब्बत मुसलमानों को है, वो जाहिर है कि दीन का हिस्सा है, वो अपने आप में मैं समझता हूं कि कोई भी चीज मुसलमान बर्दाश्त करते हैं। लेकिन आपने देखा कि अभी नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई और अक्सर कुछ ना कुछ बातें होती रहती। क्या सर सैयद का रिएक्शन हो जब हजरत के सिलसिले में कोई इस तरीके की बात की जाए? आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये एक मुद्दा है जिस पर मैं बात करूंगा।
अभी आपको एजेंडा बता रहा हूं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने यक्सा सिविल कोड के सिलसिले में हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने एक हलफनामा दायर किया है और उन्होंने कहा है कि अदालत को यह हक नहीं कि वो मुकन्नना को या पार्लियामेंट को डायरेक्ट करें कि वो यक्सा सिविल कोड बनाए। यक्सा सिविल कोड में अगर सरकार आपसे ये कह दे कि अच्छा आप ही ड्राफ्ट कर लाई, मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि हम शायद एक दफा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ किसी चीज पे एग्रीमेंट ही नहीं हो। कोई कहेगा ये शादी बातिल है, कोई कहेगा कि फासिल है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सरकार ने कोर्ट से कहा है कि आप हमको कोई डायरेक्टिव नहीं दे सकते कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं, ये हक पार्लियामेंट का है। इसका मतलब ये नहीं है कि यक्सा सिविल कोड नहीं बनेगी, लेकिन अगर यक्सा सिविल कोड बननी है तो उसमें हम क्या चीज चाहेंगे कि शामिल हो जाए, क्या रिफॉर्म्स हो हमारे अपने फिक्र में, वो प्रोसेस कैसे शुरू हो, उसके ऊपर सर सैयद का क्या नजरिया था, मैं समझता हूं वो हमारे लिए रेलिवेंट है। और उसके बाद शकील भाई ने जिक्र किया, मेहदी साहब ने भी सर सैयद को कोट किया। पूरा ये तो सवाल नेशनलिज्म का है और प्लूरलिज्म का सवाल है, और उस सवाल के नतीजे में कुछ पाकिस्तानी हिस्टोरियंस ने भी कंट्रीब्यूट किया। उसका क्या जवाब है कि क्या सर सैयद का क्या नजरिया था एक इंडियन नेशन के बारे में, क्योंकि वो वन नेशन वाला कोड पढ़ दिया गया। ये तीन बातें हैं जो मैं समझता हूं कि ये उतनी शायद इन डेप्थ एकेडमिक नहीं है जितनी कि वो होती कि जब मैं आपको रूल्स बताता गवर्नेंस के एमएओ कॉलेज। लेकिन तीन चीजें मैं पहली वाली बात में आपको बताना चाहता हूं कि जब इस्लाम के बारे में कुछ कहा जाए, हजरत के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहा जाए, तो उसमें सर सैयद ने कैसे रिएक्ट किया। 1884 में एक किताब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल कर ली गई, जिसमें इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बहुत सी ऑफेंसिव और गलत बातें थी। सर सैयद ने लेटर लिखा डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ ये मैं बता दूं कम से कम एक बात उस गवर्नेंस वाले रूल में कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस को एमएओ कॉलेज में एक्स ऑफिशियो पोजीशन सर सैयद ने, यानी सरकार से अलग होकर इदारा नहीं बनाया जा रहा। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी बनाने में भी हमारी तो कुछ ख्वाहिशें थी, जरा सा कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है। तो ख्वाहिश ये थी एमएओ कॉलेज के और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन और फाउंडेशन कमेटी की कि बरतानिया का जो एम्परर है वो हमारा चांसलर बने। एक ये वाली ख्वाहिश थी। वो बाद में जाके फिर इस पे हुई कि चलिए साहब जो लॉर्ड रेक्टर है, गवर्नर जनरल, वो यूनिवर्सिटी की अल्टीमेट अथॉरिटी होगी और आज़ादी के बाद लॉर्ड रेक्टर की जगह राष्ट्रपति जी आ गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर बन गए। तो इन्होंने लेटर लिखा पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का जो डायरेक्टर था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, और लेटर लिखा रजिस्ट्रार को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और कहा ये बड़ी गलत चीज़ें हैं इसमें। और सर सैयद के उन एफर्ट्स की वजह से वो किताब रिप्लेस हुई किसी दूसरी किताब से। हम अक्सर नहीं लिखते हैं, बड़े चीज़ों पे हम नाराज़ हो जाते हैं और गुस्सा आता है, लेकिन लिखने पढ़ने के काम से दूर रहते हैं। फिर एक दूसरा इंसिडेंट ये हुआ कि एक एडिटोरियल जो था वो छपा कुछ बॉम्बे में, लेकिन आपने देखा कि अभी नुपुर शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई और अक्सर कुछ ना कुछ बातें होती रहती।
क्या सर सैयद का रिएक्शन हो जब हजरत के सिलसिले में कोई इस तरीके की बात की जाए। आज ही सुप्रीम कोर्ट में ये एक मुद्दा है जिस पर मैं बात करूंगा, अभी आपको एजेंडा बता रहा हूं। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने यक्सा सिविल कोड के सिलसिले में हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसने एक हलफनामा दायर किया है और उन्होंने कहा है कि अदालत को यह हक नहीं कि वो मुकन्नना को या पार्लियामेंट को डायरेक्ट करें कि वो यक्सा सिविल कोड बनाए। यक्सा सिविल कोड में अगर सरकार आपसे ये कह दे कि अच्छा आप ही ड्राफ्ट कर लाइए, मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूं कि हम शायद एक दफा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ किसी चीज पे एग्रीमेंट ही नहीं होगा। कोई कहेगा ये शादी बातिल है, कोई कहेगा कि फासिल है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। सरकार ने कोर्ट से कहा है कि आप हमको कोई डायरेक्टिव नहीं दे सकते कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं, ये हक पार्लियामेंट का है। इसका मतलब ये नहीं है कि यक्सा सिविल कोड नहीं बनेगी, लेकिन अगर यक्सा सिविल कोड बननी है तो उसमें हम क्या चीज चाहेंगे कि शामिल हो जाए, क्या रिफॉर्म्स हो हमारे अपने फिल्म में, वो प्रोसेस कैसे शुरू हो, उसके ऊपर सर सैयद का क्या नजरिया था। मैं समझता हूं वो हमारे लिए रेलिवेंट है और उसके बाद शकील भाई ने जिक्र किया, मेहदी साहब ने भी सर सैयद को कोट किया। पूरा ये जो सवाल नेशनलिज्म का है और प्लूरलिज्म का सवाल है, और उस सवाल के नतीजे में कुछ पाकिस्तानी हिस्टोरियंस ने भी कंट्रीब्यूट किया, उसका क्या जवाब है कि क्या सर सैयद का क्या नजरिया था एक इंडियन नेशन के बारे में, क्योंकि वो वन नेशन वाला कोड पढ़ दिया गया। ये तीन बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि ये उतनी शायद इन डेप्थ एकेडमिक नहीं है जितनी कि वो होती कि जब मैं आपको रूल्स बताता गवर्नेंस के एमए और कॉलेज। लेकिन तीन चीजें मैं पहली वाली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस्लाम के बारे में कुछ कहा जाए, हजरत के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहा जाए, तो उसमें सर सैयद ने कैसे रिएक्ट किया। 1884 में एक किताब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल कर ली गई, जिसमें इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में बहुत सी ऑफेंसिव और गलत बातें थी। सर सैयद ने लेटर लिखा डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यहां ये मैं बता दूं कम से कम एक बात उस गवर्नेंस वाले रूल में कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को एमएओ कॉलेज में एक्स ऑफिशियल पोजीशन सर सैयद ने, यानी सरकार से अलग होकर इदारा नहीं बनाया जा रहा। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी बनाने में भी हमारी तो कुछ ख्वाहिशें थी, जरा सा कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है। तो ख्वाहिश ये थी एमएओ कॉलेज के और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन और फाउंडेशन कमेटी की कि बरतानिया का जो एम्परर है वो हमारा चांसलर बने। एक ये वाली ख्वाहिश थी। वो बाद में जाके फिर इस पे हुई कि चलिए साहब जो लॉर्ड रेक्टर है, गवर्नर जनरल, वो यूनिवर्सिटी की अल्टीमेट अथॉरिटी होगी और आज़ादी के बाद लॉर्ड रेक्टर की जगह राष्ट्रपति जी आ गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर बन गए। तो इन्होंने लेटर लिखा, पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का जो डायरेक्टर था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, और लेटर लिखा रजिस्ट्रार को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के और कहा ये बड़ी गलत चीजें हैं इसमें। और सर सैयद के उन एफर्ट्स की वजह से वो किताब रिप्लेस हुई किसी दूसरी किताब से। हम अक्सर नहीं लिखते हैं, बड़े चीज़ों पे हम नाराज हो जाते हैं और गुस्सा आता है, लेकिन लिखने पढ़ने के काम से दूर रहते हैं।
गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ये मेरा चमन है मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ सरशार निगाहे नरगिस हूँ पाबस्तगे सुए सुम्बुल हूँ मेरा चमन ये मेरा चमन ये मेरा चमन है मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ जो ताक़े हरम में रोशन है वो शमा यहाँ भी जलती है दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है ये दश्त जुनून दीवानों का ये बज़्म वफा परवानों की ये दश्त जुनून दीवानों का ये बज़्म वफा परवानों की ये शहर तरब रूं